Have you ever heard this term hashing? Anybody? No, sir. Okay. Hashtag का क्या? Hashing, yeah, hashtag is something else, but it works on same function, right? But it is totally different from this hashing techniques, right? Hashing technique is related to searching technique, right? It is a kind of searching technique where we what we are doing, we are simplifying the searching method, right? How many searching method you learned in previous classes? Can you tell me which were they? Can you name it? Two searching techniques, sir, linear and binary. Okay, we learn linear and binary search, right? Okay, right. So these were we already did, but hashing technique is something different from these, right? In this case, we use the funda of hash code or hash function. We can say this technique uses hash code. What it means to say, it is totally index based technique, right? Where index is calculated by hash function. This hash function, right? This index will be calculated by hash function, right? Let's say you have data 3, 4, 5, 6, right? This you have to restore, right? These are the values, right? You need to store. These are the values. So first you will apply hash code on first element, then find its location, then place it into the memory, right? In the same way, you will apply hash code for this element, calculate the hash function. This will be the index of that particular element, right? This is how you will do. So hash function could be anything, right? For example, hash function could be defined as like ki modulo m, right? Where m is the size of hash table which we are maintaining for storing, right? Hash table, that means size of this table. If it is 10, if it is 10, then m will be 10, and this is the key value which you are going to store. So these are the key values. These are the key values we are having for storage. So what we are doing, we are simply calculating hash key for each and every element present in the array. Let's say this is array. So what we'll do, we will simply calculate hash for 3. So let's say if you are having this hash table, this is your hash table, and it has size of 10. Let's say this is your hash table. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is your hash table. Now you need to store these elements in the hash table. So what we'll do, you will calculate hash key, or we can say hash function for this, which will be used as a index number, right? So for 3, what will be the value of hk? It will be 3 modulo m. M is 10. 3 modulo m, and 10 equals to 3, right? Right, dear? Are you with me, guys? Yes, sir. So 3 modulo 10 will be 3. Yes, sir. So that means we will be going to store 3 in index number 3, right? So 3 will be stored here. For this is for 3. This is for 3. Now calculate for 4. It will remain 4. So 4 will be stored here. This for 5. For 5, it will remain same. 5 will be stored here. For 6, it will remain same. So 6 will be stored at 6 index, which is 6, right? Let's say we have 11. Next element is 11. For 11, what will be the value? 11 modulo 10. What will be the value?
What will be the result? 11 modulo 10. Can anybody tell me? 1. 1, right. So 11 will be stored at index number 1. So index number 1 is here. So we will store 11 here. Let's say we have 27 here. Next element we are having to store as element is 27. So for 27 modulo 10 will be 7. 7. So 27 will be stored at 7. 7th position, right? So this is how this hashing works. Now, so we have stored using hash function. We have this hash function, right? By using this, we calculated index number, and those respective index number, we stored those values. So at the time of searching, what we'll do, we will if I want to search it, if I want to search 11 in this array, in this given array. So what we'll do, I will simply apply hash function for for those key. So for 11 I will calculate hash function. I got 1. That means now I got to know that this 11 is stored at index number 1. So I directly jump to this location and select this data to reading purpose or to modifying purpose, right? Is that clear to you? This is how hash function works. This is the base of his hashing, right? It means, sir, we can't store 21 and 31 at the same time No, in this. that I will discuss ahead, right? Don't worry about it. First, understand what is the base of our hashing. This is the base of our hashing. That one you are telling about is about collision. This is called collision. We will discuss it in the next point as a next point, right? So don't worry about it. Till now, it is clear to you how hashing works. Yes, sir. Okay. Now come to the point which you told me. Let's say I have 6 and 26 to store. I have 6 and 26 to store. Then what will happen? You may check. Let's say this is the same example. I am taking M as 10. This will be this, this, this. Now, why we are doing that? Why we are using hash? Because by using hash, you are able to ensure minimum searching time to search any element in the database or any array, right? So let's say, for example, let's say this is the base already we discussed how it works. Now come to the point, what will happen in case of collision, right? So let's say we have to store 6. So for 6, I calculated 6 modulo 10. It got me 6. That means at 6 position, I will store 6. Okay. Now I am selecting 26. 26 modulo 10, right? So in this case, what we are going as index hash function, I'm again getting 6. That means I need to store it at 6 position, but at 6 position in the hash table, this is hash table. This is hash table we are using. So at 6 point for 26, for storing 26, I got index number 6 or hash value as 6. That means I have to store this 6 at 6th index, but at 6th index already there is a data present there, right? 6 is already there. Then what will happen in this case? This is called this when we got same index for two multiple values, that means this is called collision. And this is the main point we have to cover in this lecture, right? So collision will be handled in two ways, right? Whether we will be using open hashing or close hashing. How to handle these collisions? We have different techniques for those, right? So for those we will discuss in this lecture, right? Okay, guys. अब क्या होगा कि अगर ऐसा होता है कि भाई दो वैल्यूज सेम इंडेक्स पे आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? दैट इज कॉल्ड कोलिजन रिजोल्यूशन, right? This is the important technique. This is in the hashing
you are having this point, important point, right? How to handle collisions, that is collision removal or collision handling, how we are having, right? So generally, in general we are having, in general we are having two types of hashing. Two types of hashing. One is open hashing, which is also referred as closed addressing, which is also known as closed addressing. Remember this point. If you are having open hashing, that means we are talking about closed addressing. And second type, we have closed hashing or open addressing, right? Remember this name, these name. So in case of collision, how we are going to perform the operations, how we are going to store the values, next value in the hash table. This will be covered by collision minimization technique or collision removal techniques, right? So these are the collision removal techniques we are having types. These are the main types. So you can see we cannot remove collision completely, right? हम लोग कोलिजन को रिमूव नहीं कर सकते कि हमारा जो डेटा है हम उस पर डिपेंडेंट है, जो डेटा आ रहा है जिसको हमें स्टोर करना है उस पर हमारा सारी डिपेंडेंसी है। तो अगर वो डेटा जिस फॉर्म में आ रहा है हमें उसे स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोलिजन होने के चांसेस हैं और वो होंगे। अगर वो होते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए? क्या रिमूव कर सकते हैं हम? नहीं, रिमूव तो नहीं कर सकते, बट अब हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं। वी हैव टेक्निक्स टू मिनिमाइज इट, नॉट रिमूव इट, राइट? सो वी हैव टू टेक्निक्स, ओपन हैशिंग एंड क्लोज हैशिंग. Open hashing has removal method as chaining method. In the open hashing, collision removal is called as chaining method, and in the closed hashing, collision removal technique is known as linear probing. We have three algorithms there: linear probing, quadratic probing, and double hashing. By using these three techniques, we can remove or we can minimize the collisions occurred at the time of storing the data, right? Is that clear to you till this point? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now come to one by one how it happens, कैसे ये काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद ओपन हैशिंग। ओपन हैशिंग में हमारे पास क्या है बच्चे? चेनिंग मेथड है। तो ओपन हैशिंग में हमारे पास चेनिंग मेथड है, या फिर हम जिसे हम बोल रहे हैं क्लोज एड्रेसिंग में हमारे पास चेनिंग मेथड है। तो आपके पास क्या बोला गया, आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं इसे। लेट्स से वी हैव एग्जांपल, हमारे पास ये की वैल्यूज हैं, ये की वैल्यूज हैं जिन्हें हमें स्टोर करना है, राइट? और हमें एक हैश फंक्शन प्रोवाइडेड है कि आपको हैश फंक्शन, अब हैश फंक्शन की बात करें तो हैश फंक्शन आपके पास हैश फंक्शन जो हमने अभी किया ये डिवीजन मेथड है। ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिवीजन। डिवीजन मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी तरह के हैश फंक्शन कैलकुलेशन मेथड हैं, जैसे फोल्डिंग मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मेथड, multiplication method. So these are different types of methods we have to calculate hash function, right? तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो डिवीजन मेथड कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। जनरली आपका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है होता है डिवीजन मेथड, जो कि हमारा हम ऊपर कर रहे थे, यूज कर रहे थे अभी। ये मॉड्यूलो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, रिमाइंडर जो कैलकुलेट करते हैं, हम डिवीजन मेथड का यूज कर रहे थे। तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं अपने आप से, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। वैसे तो हम लोग डिवीजन मेथड ही यूज करने वाले हैं पूरे एग्जांपल्स में, राइट? तो लेट्स कम टू एग्जांपल ऑफ हाउ चेनिंग मेथड वर्क्स, राइट? तो चेनिंग मेथड में हमारे पास क्या बोला गया कि आपके पास आपको ये की दे दी जाएंगी कि भाई ये की आपको स्टोर करनी है, और हैश वैल्यूज दे दी, हैश फंक्शन दे दिया जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ साइज ऑफ, दिस इज साइज ऑफ हैश टेबल दे दिया जाएगा। और आपको गिवन होगा कि यूज डिवीजन मेथड एंड क्लोज्ड एड्रेसिंग टू स्टोर दीज वैल्यूज। आपको ये जितना भी है ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको बोला गया कि चैनिंग में अगर उसने क्लोज्ड एड्रेसिंग बोला तो आपके पास क्लोज्ड एड्रेसिंग में केवल एक ही है,
यहाँ पर वो इसको क्लोज एड्रेसिंग ना देके यहाँ पर वो बोल सकता है ओपन एड्रेस, ओपन हैशिंग, या तो ओपन हैशिंग बोलेगा या फिर क्लोज्ड एड्रेसिंग बोलेगा। और डिवीजन मेथड मतलब जो हम यूज कर रहे हैं ये डिवीजन मेथड मतलब ये वाला डिवीजन मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं हैश वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो उसने बोला कि भाई आपको डिवीजन मेथड यूज करना है और क्लोज एड्रेसिंग को यूज करके इस डेटा को स्टोर करना है बाय यूजिंग क्लोज एड्रेसिंग और ओपन हैशिंग, राइट। तो हमारे पास ओपन हैशिंग में एक ही मेथड है, जैसे हम बोल रहे हैं चेनिंग मेथड, राइट, वही हम यूज करते हैं, तो उसी को हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो अब मैं इसको करते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, हर एक की के लिए हैश फंक्शन कैलकुलेट करूंगा बच्चे, राइट। बट यहाँ पर देखो ये हैश फंक्शन नहीं दिया है उसने, ये उसने आपको एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया है, और हैश फंक्शन कैलकुलेट किससे होगा, इससे। रिमेंबर दिस, दिस इज योर हैश की, कि आपको हैश की कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट। उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 मॉड्यूलो 10, यहाँ पर आप 3 मॉड्यूल, अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये दिया है तो आपको ये यूज करना है, अगर ये नहीं दिया होता तो आप डायरेक्टली 3 मॉड्यूलो 10 कर सकते थे। बट क्योंकि उसने आपको हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्दर एक फॉर्मूला दे दिया, तो आपको जब भी 3 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, लेट से आप 3 के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एच के की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, वो किससे करेंगे, 2k+1, 2k+3। तो 2 × 3, हम 3 की बात कर रहे हैं अभी, +3, ये टोटल जो आएगा ये आएगी आपकी हैश की, उसको आप मॉड्यूलो करेंगे m से, जो कि हमारा 10 है। तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 6 + 3 9, 9 मॉड्यूलो 10 = 9, राइट। तो अगर ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर ये चीज नहीं गिवन है, ये चीज नहीं गिवन है और उसने डिवीजन मेथड यूज करने को बोला है, तो आप डायरेक्टली की जो आपके पास अवेलेबल है, डायरेक्टली की का यूज करके आप कर सकते हैं। बट रियल में जो आप ये जो फंक्शन दिया है उसने, ये आपको के आई कैलकुलेट करने के लिए दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप पहले के आई को कैलकुलेट करेंगे, देन उस पे हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। यू आर यूजिंग डिवीजन मेथड, that's why you need to use this formula on calculated key, right? Got my point, guys? Yes, sir. यस सर। Okay, अगर now जब दिया है तो उसका यूज करेंगे, नहीं तो सीधा 10 से हाँ, डिवाइड नहीं तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं करेंगे। उसे, राइट। जो भी इसको आपको साइज दिया हुआ है उस पे कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, तो हर एक की के लिए आप पहले क्या कैलकुलेशन करेंगे, उसका इंडेक्स बाय यूजिंग दिस हैश फंक्शन, राइट। तो आपने यहां पर क्या किया, ध्यान से देखते जाओ, अगर ढंग से नहीं आएगा समझ में तो मुझे बताना बच्चे आप, है ना। तो पहला हमने 3 के लिए कैलकुलेट किया था, ये ऐसे ही किया था, 2 × 3, 2 × 3 + 3, 2 × 3 + 3 मॉड्यूलो 10, वो आया था हमारे पास 9, राइट। तो जो 9 आया था ये क्या है, आपकी लोकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन, देखो इस पॉइंट पे देखो, लोकेशन लिखा हुआ है बच्चे। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू, स्मॉल यू, राइट। ओके, तो अब इससे अगर मुझे पता चल गया कि 9th इंडेक्स, इससे मुझे यहाँ पर व्हाट वी गॉट टू नो दैट दिस विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 9। सो वी विल गो टू इंडेक्स नंबर 9 here and store this 3 at index number 9, right. We stored this. Now come to second, what we have, key 2. For 2 we will calculate 2 × 2, k is 2, 2 × 2 + 3 कितना हुआ बच्चे, 7 हाँ, 2 × 2 + 3 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू 7 मॉड्यूलो 10। तो 7 आया बच्चे यहाँ पर। तो 7 इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 7 पे हमें स्टोर करने का है क्या, 2। तो हमने स्टोर कर दिया इंडेक्स नंबर 7 पे। इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. यस सर। ओके, 2k+3, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैं स्क्रीन ऊपर करूंगा तो आपको ठीक है। तो ये हमारा की कैलकुलेट करने के लिए था, ठीक। नेक्स्ट 9 के लिए कैलकुलेट करते हैं। 9 × 2 + 3 कितना होगा बच्चे, 21। 9 × 2 18, 18 + 3 9 21, 21 मॉड्यूलो 10 1 तो ये जो 9 जो है ये कहाँ स्टोर होगा, 1 इंडेक्स पे, यहाँ पे। क्लियर? अभी तक कोई भी कोलिजन नहीं आया, राइट। अभी तक कोई भी कोलिजन अपीयर नहीं हुआ।
तब तक हमारे लिए सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास 6 को करते हैं। 6 को रखेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा 15 मॉड्यूलो 10 इक्वल्स टू 5। 5 तो फिफ्थ लोकेशन पे हम लोग 6 को स्टोर कर दिया हमने, राइट। कंफ्यूज मत होना बच्चे, एक इंडेक्स नंबर में मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ एक इंडेक्स नंबर है और जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ वो वैल्यू है, की है। तो फिफ्थ इंडेक्स पे मेरा फिफ्थ इंडेक्स निकल के आया, उस पे मैंने 6 को स्टोर कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी तक एक भी कोलिजन नहीं आया बच्चे। अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज 11। 11 के लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, 25 आएगा। यस सर। 25 बिल्कुल सर। मॉड्यूलो, हाँ 25 मॉड्यूलो 10 5। यस सर। तो 5 बिल्कुल पे मुझे सर। स्टोर करना है, मैं गया 5 पे। 5 पे देखा मैंने, वहां पे तो ऑलरेडी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये कोलिजन आ गया। तो चेनिंग मेथड क्या बोलता है कि जब भी कोलिजन आएगा उस टाइम पे आप उसमें एक लिंक लिस्ट ऐड कर दोगे। तो आप इसको इसको रिप्लेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 पड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी 6 पड़ा हुआ है। तो आप जो फिर जो आपको 11 स्टोर करना है वो उसके लिए क्या करोगे, आप इससे कनेक्ट कर दोगे एक लिंक लिस्ट और उसमें आप स्टोर कर दोगे 11, राइट। लिंक लिस्ट में बच्चे दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट एक पॉइंटर पार्ट, यस राइट। सर। तो हैश टेबल में आपने एक लिंक लिस्ट जोड़ दी, एक नोड जोड़ दी जिसमें आपने 11 इसको चेन बना दी। दिख रहे हैं यहाँ पे चेन दिख रहा है, ये चेन ही तो बन रही है। यस सर। दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट चेनिंग मेथड, राइट। तो उसमें आपने लिंक लिस्ट ऐड करी, उसमें एक 11 इंसर्ट कर दिया, राइट। अब ये तो पहला कोलिजन था। अब नेक्स्ट हम आते हैं 13 पे। 13 पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 13 इंटू 2 26 प्लस 3 यानी कि कितना 29। 29 मॉड्यूलो 10 विल बी 9। तो ठीक है, मैं 9 इंडेक्स पे जाता हूँ। 9 इंडेक्स पे देखता हूँ कि वहां पे ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है। We cannot replace it, so that's why we will again add a node, a linked list at index number 9 and put this 13 on this node, right? Is that clear to you? यस सर। Now next we have 7 to store. 7 into 2 14, 14 plus 3 14 plus 3 17, 17 modulo 10 will be 7. Now we go to index number 7, but there is already we have data 2, right? So we have to create a linked list, a node of linked list, and we will store 7 at this node 1, right? Okay. Now for 12, we will calculate, we will get 27 modulo 10. That means we will again get 7 index number, right? In 7 index number we found that there is a element of named as 2, and further we are going to add a node there, but we found that there is already a node. So after this node we will attach another node and store 12 here, right? यस सर। So that means we are making a chain of nodes. यस सर। That's why it is called chaining method. Have you all got this? यस सर। In case of collision, you are going to make a chain of nodes or linked list, right? So every time when you occur a collision, that means you need to create a linked list and join it at that particular index after that data value, right? यस सर। So the benefit of doing this is simple, because whenever we are going to search an element, we will be getting this much of complexity, this much of searching time, order of 1. In order of 1 time, we can search element in the hash table by using hash function. Right, guys? सर ये हैश नंबर जो है हमने टेबल के बाहर लिख रखा है, ये इसका एड्रेस थोड़ी है। टेबल के बाहर बच्चे, ये 0 1 2 3 ये एड्रेस थोड़ी है, हैश नंबर जो है ये इनके इंडेक्स नंबरिंग है ना बच्चे। जो आपकी हैश टेबल है
उसके इंडेक्सेस हैं, ये आपके 10 की हैश टेबल है तो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगी। यस सर। हाँ तो नहीं सर, ये जैसे हम लिंक लिस्ट बनाएंगे तो हर लिंक लिस्ट का एक बेस एड्रेस होता है स्टार्टिंग का, तो वो ये हम्म, वाला उसका एड्रेस तो अलग होगा ना। जैसे 5 पे हमने लिंक लिस्ट बनाई थी तो उसका जो बेस एड्रेस होगा वो 5 थोड़ी होगा, वो तो कुछ और ही होगा कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन। उसका तो कोई और ही होगा, लिंक लिस्ट का बेस एड्रेस कोई और होगा, बट वो कनेक्टेड हो जाएगी ना बच्चे, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा ना इससे 5 से, यस सर। तो वो चेन बन जाएगी एक। तो मेरे को जब भी सर्च करना होगा कोई एलिमेंट, अगर उसका उसका हैश हैश कोड 5 आया तो मैं इसकी जो लिंक लिस्ट क्रिएटेड होगी उसमें सर्च कर लूंगा डायरेक्टली। यानी कि फर्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर ऑफ एन की कॉस्ट देनी पड़े 1 की कॉस्ट देनी पड़ेगी बस। यस सर। बट अगर नॉर्मली मैं इसे सेव करता, नॉर्मली अगर मैं विदाउट हैशिंग कोड इसे सेव करता और इसको स्टोर करता, तो ये इन एलिमेंट्स को टेबल में सर्च करने का जो टाइम था वो वर्स्ट केस में क्या होता, ऑर्डर ऑफ एन। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ 1 ज्यादा बेटर है या फिर ऑर्डर ऑफ एन ज्यादा बेटर है? ऑर्डर ऑफ 1 सर। तो इसलिए हम हैशिंग का यूज करते हैं बच्चे। तो ये तो जो हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं बच्चे हम, चेनिंग मेथड ऑफ, क्या किस लिए है ये चेनिंग मेथड? कोलिजन रिमूवल के लिए। इन केस ऑफ कोलिजन how we will handle it, this is covered in this these techniques which we are understanding right now, right dear? यस सर। Okay, now this chaining method comes under open hashing. So in open hashing we are having this only one method, so we understood it. I think it is clear to you. If anybody has doubt in this, can you ask? किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें तो आगे बढ़े, सिंपल है ये। प्रोसीड सर। Okay. Okay. Now next collision removal technique we have is closed hashing, right? Closed hashing और open addressing depend। बच्चे इनके नाम बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इनके, जहां पर भी open hashing लिखा होगा उसका मतलब होगा closed addressing, और जहां पर भी closed hashing लिखा होगा वहां पर open hashing। ठीक, तो closed hashing में हमारे पास या फिर open addressing में हमारे पास we have 3 techniques to remove collisions, right? To handle collision. First one is linear probing, second one is quadratic probing, third one is double hashing. So whenever if you are not if by default if agar if in the question there is no name given which technique to use, then by default in case of closed hashing you will apply linear hashing. This is the default method. I may write default method of closed hashing। अगर आपके क्वेश्चन में उसने कोई डिफाइन नहीं किया है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है कि आपको यही वाली टेक्निक लगानी है, तो क्लोज्ड हैशिंग में आप बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करेंगे? लीनियर प्रोबिंग। हाँ ये याद रखना बच्चे, कई बार वो नहीं देगा तो आप केवल लीनियर प्रोबिंग लगाना, वहां पर कहीं क्वाड्रेटिक मत लगा देना, ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसे माना जाता है। तो कोलिजन मिनिमाइजेशन में क्लोज्ड हैशिंग या फिर ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास 3 मेथड है, तो आप उसको हम वन बाय वन सेम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? तो इसे एग्जांपल सेम है बच्चे हमारा। क्लोज्ड लीनियर प्रॉबिंग में हम लोग, प्रॉबिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉबिंग का मतलब अगर आप बाय डिफॉल्ट उसको इंग्लिश में देखें तो उसका मतलब भी सर्चिंग ही होता है, लीनियरली सर्च करना, राइट? समझ में आ रहा है? लीनियर प्रॉबिंग मीन्स लीनियर सर्च एक तरह से, तो लीनियरली सर्च करना। बट यहाँ पर जो सर्चिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है? उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स को सर्च करना कि कहां पर उसे पुट किया जा सकता है इन केस ऑफ कोलिजन। रिमेंबर this will apply only for collision time. If collision don't appear, we will not apply this technique, right? Obviously. Okay, so we have same example, same hash key. We are having same formula to calculate hash key, and it is given there that we have to use open method division method, which is this one, and have to use open addressing. And open addressing means we are talking about closed hashing, right? So that means we need to use either linear probing, quadratic probing, or double hashing, right? Okay, now this is the same question. We have calculated already value, we have calculated values already. So now for 3
value location will be 9. So we have stored 9. We have stored 3 at 9th position. So at 9th position, you can check. Let me choose another color. It's green. Okay. At 9th index, that means this is stored here. At 9th index, we stored 3. Okay. Because it is not the case of collision. So we cannot see the linear programming right now. For next element, which is 2, we got location 7. We went there and stored 2 there. Okay. For third element 9, for that we calculated, we got 1, right? This is the same calculation we did in the previous one, right? So I am not calculating again and again, right? So don't worry about it. Okay. So for 9, we will get 1, index 1. So we'll store 9 here, 9 here. Okay. Next for 6, we got index number 5, right? So that means we have to store it at 5. Okay, we stored it. Okay. Now for 11, we calculate it, and again we got 5. That means we occurred collision here. Collision occurred here because at 5 already 6 is there, right? At 5, 6 is there. You can see. Are you able to see this? Yes, sir. Okay. So at 5 we got collision. So then what we have to do? We have to choose a location by using this rule given in red rectangle. Insert in case of collision. Insert ki. Insert ki at first free location from u plus I modulo m, where I ranges from 0 to m minus 1. So this is the formula. This is the formula of linear probing. Linear probing, we will calculate the location by using this formula, right? In case of linear probing, right? Whenever we face any collision. So in this case, we faced collision. So what it is saying, that means in case of 11, I am facing problem because I am getting index number 5, but index number 5 is already occupied by 6, right? So what we have to do, we have to search a location next to it. If it is available, then we will put it there. If you don't understand, let me clear. Value which is already stored there, and at 7 what we are having, at 7 we are having 2. Okay, now we come to 11. We calculated, we found that it is going to be stored in 5th index, but 5th index is already occupied, right? So what we need to do, we need to calculate the next location where we can store this 11, right? I'm talking about this, right? So what we are doing, u plus I modulo m. U is this one, 5. U is 5. Am I right? For 11, u is 5. See here, this is u. Yes, sir. And I is 0. Initially, for every collision, I will reset to 0. So we will calculate it, right? So u is 5 plus 0 modulo m. That means 10. We will get 5 only. Then we will increment I value. This is I value, right? 5 plus 1 modulo 10, which will be 6. So we will check 6th index. So whether 6th index is free or not. So we will check, yes, 6th index is free, right? So 11 could be stored here. Got my point? Yes, sir. By using this formula, we calculated next position. तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जहां पर हमें कोलिजन मिला जिस इंडेक्स पे, उसकी नेक्स्ट इंडेक्स को हम चेक कर रहे हैं, अगर वो फ्री है तो वहां पर डाल दे रहे हैं. यही हो रहा है? यही हो रहा है बच्चे? Yes, sir. So this is called linearly probing. मतलब linearly हम सर्च कर रहे हैं स्पेस को कि जहां पर फ्री होगा हम वहां पर डालेंगे.
So by using this formula, linearly we are going to search the next space available for storing that particular key, right? Okay. Now, if you understand 11.1, next we are having 13. For 13, we got index number 9, right? And index number, we went there, but index number 9 is already occupied by 3. Am I correct? Yes, sir. So what we have to do, we have to find next location available for this. So next of 9 will be 0. That means 13 will be stored in this position, 0 position, right? So you can calculate it also. We have u क्या है बच्चे 13 के केस में 9 plus 0 modulo 10 by using this formula. This is, we are talking about this formula. 10, we will get 9. That means it is already filled. Then we will increment I value. 9 plus 1 modulo 10 equals to 0. 10 modulo 10 0. सर तो हमें पता चल गया, कैलकुलेशन से भी वही आ रहा है, और जो हम लॉजिक बाय लॉजिक जो है कि लीनियरली हम इसकी नेक्स्ट स्पेस को देखेंगे, इसका नेक्स्ट स्पेस कौन सा होगा 9 का, हमारा जो हैश टेबल का साइज है वो 10 का है, तो 9 का नेक्स्ट स्पेस कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर कौन सी होगी 0, तो वही आया हमारा, तो 13 हमने स्टोर कर दिया 0 पोजीशन पे। क्लियर क्लियर है बच्चे? यस सर अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। 7 के लिए हमारे पास जो इंडेक्स आया वो 7 आया। 7 में देखा गया, 7 में तो हमारा ऑलरेडी फील्ड है पड़ा हुआ, ऑलरेडी फील्ड है, वो ऑक्यूपाइड है, तो 7 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 7 की नेक्स्ट इंडेक्स कौन सी है 8 है, तो 8 में हम 7 को स्टोर कर देंगे। तो अगर आप उसे कैलकुलेट भी करना चाहें तो क्या आएगा, 7 प्लस आई है हमारा 0 modulo 10 will be 7, so we cannot store there, so 7 plus 1 modulo 10 it is 8। हम 8 में चेक करेंगे, हाँ 8 में फ्री पड़ा हुआ था, तो हमने 7 को वहां पर स्टोर कर दिया बच्चे, देखो यहाँ पर। क्लियर? Now come to the 12. For 12 also we are getting 7, right? For 12 also, let me choose another color, it is very important one. Okay, for 12 we are also again getting 7, so we will go to 7 index. What we will find, that it is already filled. Then we will check another further next index 8 is already filled. We will go to 9th is already filled. We will go back to 0 is already filled. We come to 1 is already filled, and we come to 2, then we find a blank space. That means for index number 2 we can store 12 here। समझ में आया बच्चे? यस सर। तो मतलब आप नेक्स्ट करके फ्री स्पेस ढूंढ रहे हो और उसमें वहां पर उसे पुट कर दे रहे हो। तो अगर आप 12 के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या पाएंगे, हम इसको 12 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम 2 पे आके ही रुकेंगे। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले से इसे कैलकुलेट कर देते हैं बच्चे। ओके, फॉर 12 वी आर कैलकुलेटिंग, हम 12 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 12 का u क्या आया बच्चे, कोई मुझे बताएगा u क्या आया? u प्लस आई मॉड्यूलो m करना है हमें, तो u है हमारा 7, i का फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, मॉड्यूलो 10 क्या आएगा 7, तो यानी कि वहां पे स्टोर नहीं कर सकते, वहां पे ऑलरेडी है, तो इंक्रीमेंट किया i को 1 मॉड्यूलो 10 विल गेट 8 में गए, 8 में भी ऑलरेडी फील्ड है वैल्यू, तो वी कैन नॉट स्टोर देयर। फिर अगेन हमने i को इंक्रीमेंट किया 7 प्लस 2 मॉड्यूलो 10 9 पे गए, 9 पे भी ऑलरेडी फील्ड है वैल्यू, वी कैन नॉट स्टोर देयर। अगेन वी आर इंक्रीमेंटिंग i modulo 10 we will get 0, that means we will go to 0, it is already filled, we cannot store there। 7 plus 4 we will increase i
मॉड्यूलो 10 विल गेट 1, 1 पे गए, वो भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बच्चे, वहाँ पे भी नहीं डाल सकते। फिर 7 + 5 मॉड्यूलो 10, 2, 2 पे गए, 2 पे हमारे पास ब्लैंक पड़ा हुआ था तो हमने 12 को वहां पर स्टोर कर दिया, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट KI एट फर्स्ट फ्री लोकेशन, फर्स्ट फ्री जो आपको फर्स्ट मिल जाएगी फ्री लोकेशन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो आप उसको वहां पर स्टोर कर देंगे। यानी कि आप लीनियरली, अगर आप बाय लॉजिक, अगर आप मैथमेटिक्स में नहीं देख रहे हो, अगर आप देखो तो आपको 7 मिला था, 7 के आगे आपने नेक्स्ट 8 पे चेक किया, आप 7 पे गए, 7 पे 2 पड़ा हुआ था, फिर आप 8 चेक किया, 8 पे भी पड़ा हुआ है, फिर आप 9 पे गए, 9 चेक किया, 9 पे भी पड़ा हुआ है, फिर आप घूम के आए 0 पे, 0 पे भी पड़ा हुआ है, फिर आप 1 पे गए, 1 पे भी पड़ा हुआ है, 2 पे पहुंचे, 2 पे आपको एक ब्लैंक स्पेस मिला, तो आपको आपने उस की को वहां पर स्टोर कर दिया, यू स्टोर्ड 12 देयर, राइट। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay, this is how linear probing works, but sometimes they ask for total number of props you have done, right? कितनी बार आपने सर्च किया, तो देखते हैं इसको इसको भी समझ लेते हैं। for for storing 3, you searched only one time, you got 9 and you stored it there, right? That means number of props will be 1. See here, 1. Yes, sir. 2, for storing 2, number of props will be same, क्योंकि बिकॉज अभी आपकी पूरी ब्लैंक पड़ी हुई है, 7 पे कुछ भी नहीं था उस समय, तो आपने उसको स्टोर कर दिया वहां पर, तो उसमें भी 1 था। ऐसे 9 में भी आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्री स्पेस में मिल गया था आपको, तो उसका भी नंबर ऑफ प्रॉप हो गया 1। ऐसे ही 6 को स्टोर करने के लिए जब किया तब भी एक ही बार किया, बट जब 11 के लिए किया आपने तो आपके पास आया 5, और जब आप 5 पे गए तो एक प्रॉप तो हो गया आपका 5 को सर्च करने का, राइट। दूसरा प्रॉप कब हुआ, जब वो आपको फ्री नहीं मिला तो आपने जंप किया और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को, नेक्स्ट इंडेक्स को चेक किया, यानी कि एक प्रॉप और ऐड होगा, एक प्रॉप यहां पर ऐड हो गया बच्चे, राइट। तो इन केस ऑफ कोलिजन key of 11, for key of 11 you got number of props 2, right? Yes, sir. ठीक है, और 9 के लिए देखो, 9 के लिए चेक करो, एक बार आप 9 पे गए, 9 फील्ड मिला, तो आप 9 से फिर 0 पे गए, तो नंबर ऑफ प्रॉप्स 2, ओके। सेम विल बी 7 पे गए, 7 फील्ड मिला, तो आप फिर 8 पे गए, राइट, 8 पे गए, तो आपने स्टोर किया इसको, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रॉप 2। बट फॉर 12, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉप्स यू कैलकुलेटेड? 6. 6। कैसे? जब आपने 0 के लिए चेक किया, एक प्रॉप ये हो गया, फिर उस पे नहीं कर सकते थे, फिर दूसरा प्रॉप, फिर तीसरा प्रॉप, चौथा प्रॉप, फिफ्थ प्रॉप, सिक्स प्रॉप, यानी कि पहले आप 7 से 8 पे आए, एक प्रॉप, फिर 8 से 9 पे आए, 2 प्रॉप, फिर 9 से 0 पे गए, 3 प्रॉप, फिर 0 से 1 पे गए, 4 प्रॉप, फिर 1 से 2 पे गए, ऐसे करके, है ना Yes, sir. नंबर। तो आपके टोटल प्रॉप जो आए आपके 6 आए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉप्स इन केस ऑफ 12 वाज 6. So whenever you ask for total number of props, you will simply sum it, right? Or they may ask for average number of props. तो average number of props कैसे निकालोगे? 16 आपका टोटल है, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, हाँ, 16 बाई 2, 8 इक्वल्स टू 2, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ प्रॉप्स आर 2 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉप्स आर 16, राइट? Yes, इज sir. दैट क्लियर? बट कई बार ऐसा होता है कि वो आपको बोलता है कि जो आपको मैंने की दी थी, उनको स्टोर करने के बाद उनका ऑर्डर भी मुझे बताओ। कई बार वो नेट पे भी नेट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पूछ लेता है वो, या फिर गेट में भी पूछ लेता है कि जो आपको मैंने अभी ये की दी है, इसको यूज करके स्टोर करने के बाद जो इनका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मुझे बताओ। तो उसमें वो ऑप्शन दे देगा, उसमें ऑर्डर्स गिवन होंगे, तो आपको ऑर्डर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर लिखे हुए हैं नीचे, तो आप देखो, अब आप इस ऑर्डर लिखने के टाइप में आपको क्या चीज ध्यान देनी है। पहले लिखोगे आप 13 जो 0 पे पड़ा हुआ है, राइट, फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर उसके बाद जहां पर ब्लैंक है वहां पर आप डैश डैश लगा दोगे, और बाकी जहां पर फील्ड है उन वैल्यूज को लिख दोगे।
तो यहाँ पर देखो नीचे जो लिखा हुआ है, लो मैं छोटा कर देता हूँ, अब ध्यान से देखो, आपको जो ब्लैंक है स्पेस उनको भी कंसिडर करना है जब वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पूछेगा आपसे बच्चे, राइट? यस सर। ठीक है, तो 30 ऊपर से लिखना शुरू कर देना, जीरो इंडेक्स से लिखना शुरू कर देना, 13 9 12 डैश डैश 6 11 2 7 3। दिस विल बी योर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो कई बार वो पूछ लेता है बच्चे, इस चीज का ध्यान रखना। नंबर ऑफ प्रॉप्स भी पूछ सकता है वो कई बार, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ सकता है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू, सबको समझ में आ गया होगा? यस सिंपल सर। है, ठीक है, मैथमेटिक्स बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नो सर। ठीक है, तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको ये चीज नहीं गिवन है, ये फॉर्मूला उसने नहीं दिया है, तो आप डायरेक्टली की को पुट कर सकते हैं की आई की जगह। बट अगर ये गिवन है तो ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू पुट होगी, राइट? ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि डिवीजन मेथड यूज करा है, डिवीजन मेथड का यही फॉर्मूला है आपका हैश की कैलकुलेट करने का, राइट डियर? यस So सर। if it is clear to you, so that's all for this lecture. We have covered chaining method and linear probing method in this class. Okay guys, thanks.